Shop with Skill Ninja Academy. And as you all know me, I'm Mandeep Kaur. I'm working here as Senior Manager Operations with Skill Ninja Academy. And I never miss a chance to meet you all on every Saturday. Because that is one thing which I enjoy a lot और इसी बहाने मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिलता है which I don't want to miss because I love my students, I love my all ladies who join us on every Saturday to learn something new with Skill Ninja Academy. And I'm sure that today's workshop will again, make you learn so many new things regarding what we are going to discuss today. वो आपको बताने वाले हैं हमारे आज की फैसिलिटेटर. तो फैसिलिटेटर के ही बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल दैट शी इज अ स्वीट लिटिल टीनेजर. ये एक टीनेजर छोटी सी लड़की है, छोटी सी प्यारी सी हमारी आज की फैसिलिटेटर है. बट कहते हैं ना, एज पे नहीं जाते, उनकी नॉलेज पे जाते हैं. सो लेट मी टॉक अबाउट इशमीत कौर, हु इज आवर फैसिलिटेटर फॉर टुडे. Ishmeet herself is a student who has been completing her master's in psychology from Punjabi University, Patiala. And she has spent her time working as a tutor to tutor the children in shelter homes. तो देखिए इतनी छोटी एज में ही she is doing so much for the community, and she is already taking classes with the shelter home children as a content strategist and as an event creator. She is also a handwriting analyst. तो देखिए इतनी छोटी एज में ही कितना कुछ वो ऑलरेडी अचीव कर चुकी है. Her creativity pursued through theater draw her to use expressive arts to help people know themselves. तो अब यहाँ से एक चीज तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शी इज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट. तो उसकी ऑलरेडी डेप्थ में कितनी ज्यादा नॉलेज होगी रिलेटेड टू पीपल एंड देयर इमोशंस एंड हाउ वी कैन वर्क अपॉन आवर इमोशनल बिहेवियर एंड ओवरऑल बिहेवियर टुवर्ड्स सेल्व्स, टुवर्ड्स आवर फैमिली मेंबर्स, और किस तरह हम अपने आप को बिल्कुल हैप्पी गोइंग रख सकते हैं. So this is what Ishmeet is going to talk about in the workshop today. So I want all of you to give your whole, your full love and your affection to our little sweet girl Ishmeet today, जो आपको आज बहुत अच्छी चीजें बताने वाली हैं. But before that, it's very important that you all need to keep your pen and paper ready, which is a very important part of the session today. So keep your paper pen ready, और दिखा भी दीजिए एक बारी कैमरा में भी सच में आपने हैंड में पकड़ा है ना, ऐसे तो नहीं हमें बोल रहे हो. Okay, now over to Ishmeet, because Ishmeet अब आपसे बात करेगी and she will be guiding you what we all need to do in this session today. स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, बट स्टार्टिंग में आप सबको हम यही बोलना चाहेंगे कि बिकॉज इट्स अ सेशन इन विच ऑलमोस्ट 100 पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन विद अस, सो मेक श्योर कि आप पहले तो अभी हम चैट में एक्टिव रहेंगे. We will be active in the chat. So whatever question Ishmeet is going to ask you, please reply her in the chat box. Please be an attentive audience, be an attentive participants to give her full of your attention, ताकि उसको भी अच्छा लगे कि आप लोग को जो भी वो बता रही है, you all are enjoying, understanding. Keep on showing a thumbs up, heart to her. उसके बाद हम बीच में आपको हम प्रोविजन देके बोलने की, तो आप वन बाय वन, टर्न बाय टर्न, जिसका हम नेम ले, वो जो भी इशमीत क्वेश्चन पूछ रही हैं आप उनके आंसर करेंगे. बीच में वो आपको थोड़ी बहुत आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी भी कराएंगी. सो लेट्स सी what all things, what all surprises we have in the session today. So over to you, Ishmeet. Thank you so much, Mandeep ma'am, for this lovely introduction. And good evening, everyone. Hello. Thank you so much for taking time out and joining this session. मेरे को सबसे पहले तो मुझे ये अप्रिशिएट करना है कि आप टाइम और एनर्जी लेके इस सेशन के लिए आए हैं. एंड आई प्रॉमिस यू आप यहाँ से कुछ लेके ही जाएंगे. इफ यू हैव सीन द पोस्टर, आपको क्या लगा होगा? आई एम नॉट वेरी श्योर. इमोशनल वेलनेस की हम बहुत बारी बात करते हैं, स्पेशली जो हमारे यहाँ पे अभी ऑडियंस प्रेजेंट है. आई थिंक इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द इमोशनल वेलनेस ऑफ ऑल ऑफ यू. सो आप सब एकदम सही जगह पे हैं. एंड बिकॉज स्किल निंजा बहुत अच्छे वर्कशॉप्स करता रहता है, एंड आई हैव सीन द काइंड ऑफ वर्कशॉप्स दे डू. आई फील आप में से जिन्होंने ऑलरेडी पहले कर रखी हैं, यू मस्ट बी अ लिटिल अवेयर. बट हियर्स द थिंग अबाउट इमोशंस, हम जितना उनसे वाकिफ होएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है. सो kudos to all of you, and I hope this session goes well. Let me share my screen.
आपने दिखा दिया कि आपके पेन्स और पेपर्स आपके पास है, सो थैंक यू फॉर कीपिंग दैट। मीनवाइल आप अपने आसपास थोड़ी सी जगह भी बना लीजिए, हल्की सी, बिकॉज हम थोड़ा सा मूव करेंगे। तो अभी तो आपने बैठना ही है, बट जस्ट पहले से ही बता दिया, सो दैट अगर आपने स्पेस बनानी है तो अब बना लीजिए। एंड आई विल शेयर माई स्क्रीन। इफ यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन, ऐसे एक बार थम्स अप बता दे दीजिए Yes, मुझे yes. बस। Yeah, it's visible. All right. Thank you. So it's an emotional wellness class today. हटके से थोड़ी आज क्लास करेंगे, but it is a class because we will be doing a lot of stuff and we will be learning a lot of stuff. So before talking about this slide, what are emotions? हम emotions से क्या समझते हैं? आप लोग अगर chat box में डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं. I'll wait for a minute for your responses. Feelings, okay. ऑल राइट, ठीक है, फीलिंग्स, ग्रेट, हाँ जी, इट इज फीलिंग्स, बट मजेदार बात यह है कि इमोशन एक अम्ब्रेला टर्म है और फीलिंग्स उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है। फीलिंग इज जो हमें यहाँ महसूस हो रहा है, पर इमोशंस इज हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स, जो उसी वक्त रिस्पॉन्स मिलता है। एक सिचुएशन अराइज होती है, हम उसे फेस करते हैं, और उसी वक्त जो हमारा रिस्पॉन्स आता है, जो कि ना कि सिर्फ मेंटल है पर फिजिकल भी है, उसे हम इमोशंस कहते हैं। जब हमें स्ट्रेस लेते हुए पसीना आता है तो वो हमारा इमोशन है, सिर्फ फीलिंग नहीं है। सो इमोशंस आर अ लिटिल मोर डीप. So right now, let's try to focus on the emotion that we are experiencing. हम अभी किस mood में हैं? Are we feeling happy? Are we feeling fearful? या हमें किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, या हमें बहुत एक्साइटमेंट है? आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, आप सेंटेंस लिख सकते हैं. यूज द चैट बॉक्स प्लीज, फील फ्री. लेट्स जस्ट डू अ क्विक चेक इन कि हमें आज कैसा लग रहा है. टेंशन, happy, excited. Okay, a lot of us are happy. Some of you have written sad. I hope you feel better by the end of this session. Relaxed. Okay, great. So overall हमारा generally mood अच्छा चल रहा है. Great. Okay, so this was just a check-in. क्योंकि पहला स्टेप इमोशनल वेलनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ हमारा यही है कि हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें, राइट? क्योंकि हम जब तक पहचानेंगे नहीं कि हम क्या फील कर रहे हैं, हम उस पर आगे काम नहीं कर सकते. सो ग्रेट जॉब एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर आइडेंटिफाइंग योर इमोशंस. नाउ इज व्हेन आई नीड यू टू फाइंड स्पेस बिकॉज वी विल मूव अराउंड. कुछ नहीं करना है, हम लोग बस थोड़ी सी जगह लेंगे. आई विल ऑल्सो गेट अप विद यू एंड वी विल ट्राई टू मूव आवर बॉडी. वी आर नॉट डांसिंग, वी आर जस्ट मूविंग. जहां जैसे हो सकता है, अभी म्यूजिक बजेगा एंड हम मूव करेंगे, जो पार्ट्स हो सके मूव करेंगे. एंड इफ यू ऑल कैन, हाँ जी, Ashmit, you can stop your screen sharing and then I'll share. ओके, So should I play the song? यस. Okay. And I would love if you all can be on camera and move along with me. Don't have to copy me because it's your movement. Do as you like it. Wow. Yeah. Enjoy your mood, everyone. शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी
मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस Please stop the music. Thank you so much. It was lovely seeing all of you move your bodies and move every part that you could and enjoy the music. Do you know why we moved right now? Enjoyed a lot. Great. क्या कोई गेस करना चाहता है कि हमने क्यों ये मूवमेंट करी है इमोशनल वेलनेस में? To cheer yourself, for mind changing. Yes. Relaxed. Okay. For refreshing our body. Right. आप सब बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं. To release stress, ये बहुत important है. Change the atmosphere and get comfortable. Yes. Because emotion depends on mood. Yes, that too. Mood भी feelings की तरह emotions के अंडर आता है. So हम जब एक emotion experience करते हैं तो हम एक दूसरे mood के सहारे अपना emotion भी बदल सकते हैं. Feeling fresh, great. आपने किसी ने बोला था कि कंफर्टेबल फील होने के लिए, विच इज टोटली करेक्ट, क्योंकि जब हम मूव करते हैं हम अपनी डेली रूटीन को एक बार इवैल्यूएट करते हैं, सोचते हैं कि हम एक दिन में कितना अपने शरीर को मूव करते हैं. इवन इफ वी गो टू द जिम, क्या हमारे मूवमेंट्स उसमें रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं? है ना? सो हाँ, वी नीड टू इवैल्यूएट कि हम कितना एक दिन में अपने शरीर को मूव कर रहे हैं. हम नहीं कर पाते और हमारे इमोशंस जो है एक्चुअली हमारी बॉडी में बिल्डअप होते हैं. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इमोशन फिजिकल मैनिफेस्टेशन में भी आता है. तो हमारे शरीर में अलग अलग कोनों में इमोशन एक तरह का टेंशन क्रिएट करता है और हम वो पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि हम शरीर को तो डेली रूटीन में मूव नहीं करते. तो उस चक्कर में हम उससे प्रोसेस भी नहीं कर पाते. और क्या होता है जब हम इमोशन को प्रोसेस नहीं करते, फिर वो अलग अलग तरीके से बाहर आता है और वो अलग तरीका जो होता है हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो एक तरह से नेगेटिव रिफ्लेक्शन बनती है. So, moving your body is a very important routine, which it should be in all of our life. अगर हम रोज भी नहीं कर पा रहे हैं, हल्का जितना हमारी बॉडी अलाउ करती है, it is a good idea to move our body. Again, इस स्ट्रेस में ना रहे कि मैं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप ये अपने लिए कर रहे हैं. It's just about moving your body and releasing any stress. जब मेरे को नहीं समझ आता है कि मैं अपने इमोशंस को वर्ड्स में कैसे पुट करूं, I play any music and sometimes I don't play music at all and I just let my body flow. आप जितना ये ज्यादा करेंगे ना, ओवर टाइम आपको रियलाइज होगा कि आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है. आपकी बॉडी खुद ब खुद मूव कर रही है बिकॉज उसकी खुद की कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है. राइट जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या हम जब हेजिटेंट होते हैं किसी पार्टी में बैठे हुए कि हमें किसी से इंटरैक्ट नहीं करना है, व्हाई डू यू थिंक वी सिट लाइक दिस विद क्रॉस्ड आर्म्स? क्योंकि वो एक तरह का कम्युनिकेशन है हमारी बॉडी का दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल हियर. सो बॉडी हैज अ वे टू कम्युनिकेट एंड द लैंग्वेज विल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. तो आप अपनी बॉडी के लैंग्वेज से और फेमिलियराइज होने के लिए शरीर को मूव कर सकते हैं. जैसे भी आपकी बॉडी कह रही है. इट्स अ गुड वे टू कॉन्शियसली पुट एफर्ट कि मैं वॉलंटरीली ये एफर्ट करूं कि मेरा शरीर और ज्यादा खुल जाए. नाउ आई एम शेयरिंग माय पीपीटी अगेन. जस्ट लेट मी नो विद अ थम्स अप इफ यू कैन सी. Yes, it's visible. थैंक यू.
ठीक है, नाउ दैट ऑल ऑफ अस हैव मूव्ड अ लिटिल, थोड़ा सा थकान हो रही होगी, सो वी विल calm ourselves down and come in the present. ठीक है, मेरे साथ एक बारी डीप ब्रेथ इन लीजिए एंड इफ यू कैन रेज योर हैंड्स अप. सो ब्रीद इन एंड आउट थ्रू योर माउथ, मुंह से निकालिए. वंस अगेन ब्रीद इन और बाहर. अगेन ब्रीद इन एंड आउट. थोड़ा सा और प्रेजेंट फील हो रहा है. ओके, आई सी 2 हैंड रेजेस. आप रूपा जी और अनिका जी, अगर आप चैट बॉक्स में अपना कमेंट या क्वेश्चन डाल सकते हैं, वी विल टेक इट अप लेटर. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू बीइंग माइंडफुल. माइंडफुलनेस क्या है? जब हम अपने बारे में, हमारे आसपास जितने लोग हैं, जो चीजें हैं, उसके बारे में अटेंटिव हैं और अवेयर हैं. मैं कमरे में बैठी हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, क्लॉक है, पर क्या मुझे पता है वो क्लॉक का कलर क्या है, उसमें सुइयां 2 है कि 3 है फॉर मिली सेकेंड्स? चेयर्स का कलर क्या है, चेयर्स का टेक्सचर क्या है? हम अक्सर नहीं ये इन चीजों पे ध्यान देते, क्योंकि वो रूटीन में चीजें चल रही हैं, तो हम और चीजों पे ध्यान दे देते हैं. पर ऑल ओवर अवेयरनेस जो है हमारी, उस वजह से घट जाती है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ पे फोकस कर नहीं पा रहे हैं. और आजकल की लाइफ भी खैर हमारी ऐसी हो गई है कि सब कुछ दौड़ रहा है, सब कुछ जल्दी जल्दी चल रहा है, जिसकी वजह से हम अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं, अपने अपने क्लोज वंस के बारे में सोच नहीं पाते हैं, हमारे आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं. और क्योंकि हम इन चीजों के बारे में इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं, तो उन चीजों के साथ रिश्ते भी बिगड़ते हैं. right? If you don't evaluate the strengths and weaknesses of things around you and the relationships around you, of course उन पे ध्यान ना देने की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी. So first thing is being mindful. हम और ज्यादा अवेयर रहे, ध्यान दें हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमारे बाहर क्या चल रहा है. So हमने अभी डीप ब्रेथ्स लिए हैं, है ना? इससे क्या होता है, थोड़ा हमें पॉज लेने का मोमेंट मिल जाता है कि हम रिएक्शन देने से पहले रुक जाएं, अभी इस मोमेंट में, इस पल में क्या चल रहा है, हम बस उस पे ध्यान दें. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं. अब मैं चाहती हूं कि आप सब 2 मिनट लेके आसपास ऑब्जर्व करें. बस देखो क्या चीजें हैं कमरे में. कुछ ऐसा है जो नया आपको दिख रहा है कमरे में, जो आप इतने टाइम से यहाँ बैठे हो पर आपको पता ही नहीं था? और आप साथ साथ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, इट्स फाइन. कुछ नया दिख रहा है आपको? पहले आप पूरा तरफ स्कैन कीजिए, ऊपर से नीचे देखिए, फिर लेफ्ट से शुरू होइए और राइट तक जाइए, डिटेल्स पकड़ने की कोशिश कीजिए. क्या क्या दिख रहा है आपको? कोई बॉटल दिख रही है, कोई छोटा सा कोई पीस दिख रहा है? अच्छा, अब नोटिस कीजिए कि हवा चल रही है हल्की हल्की या बहुत तेज, कि नहीं आपके चेहरे पे लग रही है हवा? अच्छा, हवा आ कहाँ से रही है, बाहर से आ रही है या पंखे की वजह से लग रही है? अच्छा, कलर्स कौन से हैं? कोई किसी तरह की फ्रेग्रेंस है, किसी तरह की खुशबू आ रही है, या स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, या बिल्कुल न्यूट्रल है? मिट्टी की खुशबू आ रही है, अभी बारिश हुई होगी इसका मतलब है.
ओके, क्या शेप्स दिख रहे हैं आपको कमरे में? किस तरह के शेप्स दिख रहे हैं? कुछ गोल चीजें हैं? कितनी गोल चीजें दिख रही हैं या कितनी ट्रायंगल चीजें दिख रही हैं? Wind from the window, great. More rectangular things, okay. अच्छा, बड़ी बड़ी चीजें ज्यादा हैं जो बहुत सारी स्पेस कवर कर रही हैं, या फिर छोटी छोटी चीजें डिटेल्स में ज्यादा है? Someone noticed their Pokemon का toy, great. Big things. अच्छा, इन बिग थिंग्स का या स्मॉल थिंग्स का मटेरियल क्या है, और वो मटेरियल का टेक्सचर क्या है? अगर आपके पास कोई टॉय है हाथ में या पेंसिल है, तो उसको हाथ लगा के एक बार फील कीजिए उसका टेक्सचर किस तरह का है, सरफेस जो है छूने पे कैसा लग रहा है। और कोशिश कीजिए कि आप उस फीलिंग को एक वर्ड दें। पेंसिल तो हम रोज पकड़ते हैं, पर उसको वर्ड देने की कोशिश करते हैं। टेडी बेयर, टेलरिंग मशीन। आई एम श्योर आपको अभी देखते देखते कुछ ऐसा भी मिला होगा जो आपने बड़ी देर से यूज ही नहीं करा है, और अब आपको दिख रहा है कि ओहो, ये भी चीज पड़ी हुई है। ट्रॉली, फ्रेश पिलो। फीलिंग ऑफ फ्रेश पिलो इज ग्रेट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने रूम को अच्छे से एनालाइज कर लिया है। अब थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ाते हैं। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर फॉलोइंग मी स्टिल। ओके, ओके, ठीक है जी, थैंक यू। अब हम थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, ठीक है? अगर आपने, हो सकता है विजुअलाइजेशन टेक्निक करी हो, अगर आप मेडिटेशन करते हैं। थैंक यू, चैट बॉक्स में भी मुझे थम्स अप मिल गए हैं। अब आप लोग सब बस आंखें बंद करके रिलैक्स होके बैठ जाइए। अगर आपने फोन लिया हुआ है तो फोन को किसी जगह पे टिका दीजिए। और फोन टिका के आंखें बंद करके हम रिलैक्स करेंगे। हम ब्रीदिंग करेंगे सबसे पहले। ओके, ब्रीद इन एंड आउट। फिर से ब्रीद इन एंड आउट। एक और ब्रीद इन, बिल्कुल अंदर तक सांस जाने दो जितनी है। होल्ड करो, बिल्कुल होल्ड कर को रोक लो। और अब फिर से ब्रीद आउट। आंखें बंद करके रखेंगे और हम कोई ऐसी एक्टिविटी के बारे में सोचेंगे जो, जिसको हमें करने से खुशी मिलती है, या जिससे हमें आराम मिलता है, कंफर्ट, पीसफुल। कोई भी एक्टिविटी हो सकता है, आप वो रोज करते हो, पर हम उसके बारे में सोचेंगे। इमेजिन कीजिए आपके हाथ के नजरिए से आपको दिख रहा है और आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं। अब फिर से ऑब्जर्व करें कि उस एक्टिविटी को करते करते आपके आसपास क्या चीजें पड़ी हैं। क्या क्या छोटी चीजें हैं, क्या क्या बड़ी चीजें हैं। कोई खुरदुरा सा सरफेस है या कोई सॉफ्ट सरफेस है। रंग क्या क्या है उन ऑब्जेक्ट्स के। और आपको वो एक्टिविटी करते करते लग कैसा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। कोशिश करिए उस फीलिंग को वर्ड्स में ढालने की। और अगर हमें इन चीजों पे फोकस करने में दिक्कत हो रही है, इट इज ओके।
हम फिर से खुद को रीफोकस करने की कोशिश करेंगे, हम वापस से उस एक्टिविटी में घुसने की कोशिश करेंगे। यस, रूटीन वर्क इज ऑल्सो एक्टिविटीज। पर उस रूटीन वर्क में आप ऐसा क्या करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है? टेक अ लिटिल वाइल, खुशबू लेने की कोशिश कीजिए उस एक्टिविटी में। कहीं से कोई खुशबू आ रही है या कोई बदबू आ रही है या किसी भी और तरह की सेंट आ रही है। शायद मिट्टी की ही खुशबू है या शायद लक्कड़ की है। पेंट की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। क्या आ रही है? अगरबत्ती, यस। आपकी फेवरेट अगरबत्ती की खुशबू कैसी है? कोशिश कीजिए उसे इमेजिन करने की। थोड़ी देर के लिए हम इस फीलिंग के साथ बैठेंगे, इसके बारे में ध्यान करेंगे, और जैसे हमें कंफर्टेबल लगेगा हम धीरे धीरे वापस आएंगे और आंखें खोलेंगे जब हमें कंफर्टेबल लगे। और एक बार अगर आपने आंखें खोल ली हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन। ओके, मोस्ट ऑफ अस आर डन। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसका डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे, पर प्लीज होल्ड ऑन टू दिस फीलिंग। आगे की एक्टिविटी करने के बाद हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? सो प्लीज रिमेम्बर आपने क्या क्या फील किया, क्या क्या देखा, क्या चीज आप कर रहे थे। फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी हमें अपना पेन और पेपर चाहिए, ठीक है? एक तरह का हम सेल्फ एवेल्युएशन करने वाले हैं। आप अपने पेपर पे एक बड़ा सा सर्कल बना लीजिए, पर ध्यान दीजिएगा कि या तो सर्कल के अंदर जगह हो या सर्कल के बाहर जगह हो लिखने की। सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड दिस सर्कल। Shmit, you can stop screen sharing and show them first. ओके, मैंने ये सर्कल बनाया है। वेट, या ये सर्कल बनाया है। और अब हम इस सर्कल को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे भी आप चाहें। Shmit, can you show? यस, वी कांट ड्रॉ अ वेरी स्मॉल सर्कल क्योंकि हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द स्क्रीन वो दिख नहीं रहा है। पाई चार्ट की तरह बस 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डजंट हैव टू बी इक्वल।
बट जैसे भी आप कर सक रहे हैं, बस 5 पार्ट्स। Look, you can see on the screen also. So divide it like this way. And if it is done, show a thumbs up. ओके, ग्रेट। अब हमने ये 5 पार्ट्स जो बनाए हैं, ये सर्कल आप है, आपका एनवायरनमेंट, आपका इनर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट हम करने वाले हैं टू नो आवरसेल्व्स बेटर। तो आप या तो सर्कल के अंदर लिख सकते हैं, जैसे वो एक ट्रायंगल पिज्जा जैसा स्लाइस बन गया था, या तो उसके अंदर लिख सकते हैं अगर इतनी स्पेस है, वरना उस स्लाइस को मार्क करके बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पहला स्लाइस पकड़ लीजिए और उसमें हम लिखेंगे 5 लोगों के नाम जो हमसे सबसे ज्यादा क्लोज है। और हम जब कहते हैं कोई हमसे क्लोज है, सो वी मीन इट नॉट इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंस, पर इमोशनल डिस्टेंस। यानी कि आप सोचिए उन 5 लोगों के बारे में जिनके पास आप एडवाइस के लिए जा सकते हैं, या आपको जब किसी पे बहुत गुस्सा आया है तब उनके साथ जाके शेयर करेंगे, या आपको कोई परेशानी है तो उनके पास जाके शेयर करेंगे। तो जो आपके क्लोज सोशल सर्कल में आते हैं, उन 5 लोगों के नाम आप लिखेंगे। फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव्स, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर कोई भी 5 लोग जिनसे आप इमोशनली अटैच्ड हैं। और कोशिश करेंगे 5 तक, अगर 3 ही हो रहे हैं कोई बात नहीं, पर अटेम्प्ट पूरा करेंगे टू राइट मोर। स्वाति जी, फिजिकल डिस्टेंस डज नॉट मैटर, इमोशनल यस। ओके, सो अगर हमने ये लिख लिया है, हम अगले सर्कल में अपनी 5 स्ट्रेंथ्स लिखेंगे जो हमें लगता है हमारी ताकत है। ऐसा कोई क्वालिटी, ऐसा कोई ट्रेट मुझ में जो क्योंकि मुझ में है, मैं सोशली सोसाइटी में जा पाती हूँ, वो मेरा स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है द वे यू टीच, इट कुड बी द वे यू टॉक, इट कुड बी योर ब्यूटी। इट कुड बी योर पेशेंस, कुछ भी हो सकता है। एंड द की टेक अवे हियर इज टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने आप को झूठ मत बोलना, अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस में इमेजिन कीजिए और फिर सोचिए आपकी ताकत क्या है।
Yes, do let me know in the chat box once you're done. ओके, सो एक बार ये हो जाए तो हम अगला स्लाइस पकड़ेंगे। अभी हमने ताकत के बारे में बात करी, तो अब हम बात करेंगे हमारी 5 कमजोरियों के बारे में, टॉप 5। आशा जी, गुड चिल्ड्रन इज योर स्ट्रेंथ, बट अगेन वो आपके बच्चे हैं, पर हम अपने पे फोकस करेंगे एज मदर्स एंड एज केयर टेकर्स। हमारी ये टेंडेंसी हो जाती है कि हम अपने बच्चों से अपनी आइडेंटिटी बना ले, पर नहीं, हम अपने पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो वन सेपरेट इंडिविजुअल। एंड शिल्पा जी, आपको पक्का अपनी कोई स्ट्रेंथ मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा और ध्यान लगाइए और सोचिए, एंड डू लेट मी नो, एक बार आप लिख लो अपनी स्ट्रेंथ। एंड फॉर दोस्त जिन्होंने स्ट्रेंथ्स लिख ली हैं, अपनी 5 वीकनेसेस लिखेंगे हम। अगेन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। हम हमारी टेंडेंसी यही होती है कि हम अपने आप को झूठ बोल दें कि नहीं, ये तो नहीं है मेरी कमजोरी, मैं तो कर लेती हूँ, पर कुछ ना कुछ होता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सेम, यस, हो सकती हैं, हो सकता है सेम चीज हमारी स्ट्रेंथ और सेम चीज हमारी वीकनेस है। ओके, सो आशा जी, आपने लिखा बिकॉज व्हेन आई फील फियर आई मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। सो मे बी आपकी स्ट्रेंथ आपकी करेज है, दैट यू आर करेजियस। ओके, डॉक्टर महराज, आपने लिखा है आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, दैट्स माय वीकनेस। सो हम आगे फियर्स की बात करने वाले हैं। ये आपका फियर है, मे बी दिस इज नॉट योर वीकनेस। फियर्स हम, ओके, सो हमने एक बार वीकनेस लिख ली है, तो अगले स्लाइस में हम 5 फियर्स लिखेंगे, यानी कि वो चीजें जिनसे हमें डर लगता है। पर चीजों का मतलब ये नहीं कि मुझे छिपकली से डर लगता है, मुझे फ्रॉग से डर लगता है। हम और डेप्थ में जाके सोचेंगे कि हमें किस चीज से डर लगता है। वो ऐसी कैसी सिचुएशन है जिसका सामना हम करने से डरते हैं। मे बी कुछ ऐसे लोग जिनका सामना करने से हम डरते हैं। मे बी सम पीपल जिनके वजह से आप डरते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बहुत मदर्स और केयर टेकर्स हैं। मे बी यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग योर चाइल्ड टू एनीथिंग, और मे बी योर चाइल्ड बीइंग हर्ट, इट कैन बी योर फियर। Impatience related to weakness. Yes, impatience can be your weakness. Short temper is a weakness, yes.
Sapna ji, right, you've identified correctly. Stage fear, yes, you can consider that in your weaknesses. Make sure आप अपने पेज पे भी लिख रहे हैं और सिर्फ चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं. For some people, aging is their fear, growing old. Hurting others, yes, it is a fear. And once we are done with that, we will write 5 things that we are proud of ourselves. हमें ऐसी कौन सी चीजों से खुद पे गर्व है? Mudita Agarwal, not speaking fine English is a fear or weakness, can be both. Okay. So now we will move on to 5 चीजें जिसकी वजह से हमें खुद पे गर्व है. Some of you might find this tough and some of you might find it very easy. And again, for caretakers and mothers and guardians, किसी और से एसोसिएट मत करना, अपने से एसोसिएट करनी है वो चीजें जिससे आप प्राउड है. So don't write if my child won so and so prize. Write I am a good mother. Or write I can drive. Being disciplined, yes, great. Self-confidence, worthy of pride, yes. Taking self-decision, so independent decision making, bilkul, should be proud of it. Can cook very fast, wow. All right. आपने बहुत कुछ लिखा है चैट बॉक्स में and I'm very happy to read it. This was our last activity before moving on to a very short discussion. So I will stop sharing for a bit. I hope आप सबने अपने पेपर्स पे ये सब लिखा है और नॉट सिर्फ चैट बॉक्स में, क्योंकि चैट बॉक्स इरेज हो जाएगा. पर पर्पस इस एक्टिविटी का ये था कि आप जो भी लिख रहे हैं वो आपके पास पड़ा रहे, so that you can look back and refer to this, क्योंकि आपने अभी बैठ के खुद अपना evaluation किया है, right? So अभी हम लोग शेयर करेंगे. I just want to give you all some space to share आपका mindfulness जो हमने एक्टिविटी की थी उसका और अभी जो किया था इसका एक्सपीरियंस. हम बहुत सारे शेयर्स नहीं ले पाएंगे, सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग हैंड रेज करें अगर आप अपने हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं.
and then we will try to incorporate everyone's shares. Mandeep ma'am, अगर हम Yeah, Ishmeet ma'am, I'm there with you. okay, so ma'am, Yeah, Anju हमने now wants to ask something. Shall I Oh. keep informing like who raised the hand? okay, okay. Anjum Khan has raised their hand. Can we speak to them first? Yeah. Yeah, Anju ma'am, you can ask your query. Hello, Anjum ji, can you Stop hear? the recording, Sneha. Done, Ishmeet, otherwise? Hello, I have Am one I last audible? slide to share, so I will. As of now, Am I we will audible? stop recording and then we can again play. Yes, Okay. yes. Okay, okay, ma'am. थैंक यू. सो हमने इमोशंस के बारे में बात कर ली, हमने एक्टिविटीज कर ली, बिकॉज इन सब एक्टिविटीज का एंड गोल क्या था? इमोशनल वेलनेस. इमोशनल वेलनेस है क्या? द एबिलिटी टू सक्सेसफुली हैंडल लाइफ्स स्ट्रेसेस एंड अडेप्ट टू चेंज इन डिफिकल्ट टाइम्स, राइट? तो आसान शब्दों में कहे तो हम इंसान होने के नाते हम में बहुत सारे भाव जागते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, स्पेशली जब हम किसी सोशल सिचुएशन में जाते हैं, राइट? हम किसी और से मिलते हैं या जिसमें हम डायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर हम वहां से गुजर रहे हैं तो तब भी हमें वो महसूस होगा. अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो आपका भी मूड एक तरह से खराब होता ही है, क्योंकि हम एज ह्यूमंस शेयर करते हैं एनर्जी, राइट? तो इमोशनल वेलनेस तब है जब हमने वो स्किल सीख ली है कि हम अपने भाव को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि बहुत तरीके के भाव होते हैं और कोई भाव अच्छा या बुरा नहीं होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि दुखी रहना बुरा है और सुखी रहना अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं है. अभी कुछ नहीं सुन रही. कैन वी म्यूट एवरीवन अगेन, मैम? Yeah, ma'am, done. Everyone is here. Ma'am, you are unmuted. हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी. हाँ Yes, जी. ma'am. सो अच्छा बुरा सिचुएशन के हिसाब से होता है. यानी कि अगर मैं बर्थडे पार्टी में आई हूँ और मैं बिल्कुल ही रो रही हूँ, दुखी हूँ क्योंकि कुछ और हुआ है, तो वो हमने अपने भाव को बिल्कुल ही जता दिया. उस सिचुएशन में ये गड़बड़ हो गई, पर अदरवाइज रोना बुरी चीज नहीं है. पर ये कि हम अब इसमें इमोशनल वेलनेस कब होगी? जब हम खुद को समझाएंगे कि ठीक है, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंस कुछ और है, हम अपने इमोशंस को थोड़ा बर्थडे पार्टी के बाद में समझेंगे और फिर उनसे डील करेंगे, तो तब फिर रोना दिक्कत नहीं होएगी. पर वो जो हमने स्किल सीख ली कि हमें कब अपना इमोशन आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है? दूसरा, हमने एक्सेप्ट या वैलिडेट किया. वैलिडेट मतलब ये नहीं बोलना है कि ओहो मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपने वो कर दिया ना, आपने समझो खुद से दगा कर दी, क्योंकि वो भाव आपके हैं, वो आपके अपने हैं, वो गलत या सही नहीं है. तो आप सबसे पहले तो अपनाओ अपने इमोशंस को कि मेरे को जो भी महसूस हो रहा है वो ठीक है. अब हम पहचानना चाहेंगे कि मुझे क्यों महसूस हो रहा है ऐसा, ठीक है? तो वेयर इज इट रूटिंग फ्रॉम? ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या मैंने सोचा जिस वजह से मुझे ये भाव फील हो रहा है, या मैं इस कैसी सिचुएशन से गुजरी हूँ जिस वजह से मुझे ये भाव फील हो रहा है, एंड देन आई विल एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली. बिल्कुल ऐसे गले मिल लो अपने इमोशंस को, क्योंकि वो आपके अपने हैं. सो वी विल आइडेंटिफाई एंड देन वी विल एक्सेप्ट. उसके बाद हम खुद को रीसेंटर करेंगे. बर्थडे पार्टी एग्जाम्पल, हमने बोल दिया ठीक है हमें इस वक्त बुरा लग रहा है, हम अपसेट है, पर अभी मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मैं थोड़ा रीसेंटर करती हूँ, वापस से अपने आप को बैलेंस में लाती हूँ और इस पे फोकस करती हूँ, पहले पार्टी पे. उसके बाद जब हम पार्टी से निकल गए तो हम सॉल्व करेंगे कि अब बताओ अब मुझे क्यों ऐसे लग रहा था, और इस इमोशन से मुझे निकलने के लिए, इसे प्रोसेस करने के लिए, मतलब बिल्कुल एक एक धागे को अलग करने के लिए. क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि हमें क्यों कैसे महसूस हो रहा है, फिर हम उससे डील कर पाते हैं.
मतलब अपने आप को छोटा छोटा करके अपने इमोशंस को अलग अलग थालियों में रख दो ताकि आपको दिखे साफ कि मुझे क्यों, कैसे, कहाँ महसूस हुआ. दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एनीवे. सो we will identify, we will accept, we will recenter ourselves and then solve the actual problem. हो सकता है मुझे इसलिए बुरा लग रहा है बर्थडे पार्टी में आने से पहले क्योंकि मेरी किसी से लड़ाई हो गई, मेरे किसी दोस्त से लड़ाई हो गई. तो अब जब हम बर्थडे पार्टी से निकल गए तो आई विल गो बैक एंड ट्राई टू सॉल्व द लड़ाई. ठीक है. सो इमोशनल वेलनेस तो आप समझ गए कि जब हमने इमोशंस को अपने संभालना सीख लिया. सो किस तरह से संभालते हैं? रेगुलेट करके, यानी कि उन्हें बैलेंस करके. मतलब कि जब हम रिएक्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, इमोशन क्या है? सिचुएशन आई, हमने उसे सामना किया और इमीडिएटली रिएक्शन दे दिया उसी वक्त. पर अगर हम इमोशनली रेगुलेटेड हैं तो हम इमीडिएट रिएक्शन नहीं देंगे. वो आएगा पर हम 2 सेकंड लेंगे, हम कहेंगे लेट मी थिंक दिस थ्रू, मुझे सोचने दो ये हुआ क्या है, मुझे महसूस कैसा हो रहा है, और फिर मैं अपना रिएक्शन दूंगी. मैंने अक्सर ये देखा है, बोला जाता है कि लड़ाई हुई है एंड देन समबडी हु इज इमोशनली रेगुलेटेड, वो समझो 5 दिन बाद आके बोलेंगे कि आपने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, मुझे ऐसा ऐसा लगा, ये आपने गलत किया. तो सामने से बंदा बोलता है आपको 3 दिन बाद याद आया. बट इट्स अ गुड हैबिट, क्योंकि अगर मैं गुस्से में आप पर चिल्ला देती तो वो सिचुएशन और खराब हो जाती ना. इससे अच्छा है कि मैं 3 दिन बाद सोच के एक शांत भाव में रह के बेटर वर्ड्स का इस्तेमाल करके फिर आपके सामने अपनी बात रख रही हूँ. सो दैट इज इमोशनल रेगुलेशन. अगर आप इमोशनल रेगुलेशन समझ गए हैं, सो लास्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज द टेक्निक्स जो नीचे लिखी हैं रेगुलेशन वाले डब्बे में. पहला तो ऑफ कोर्स मेडिटेशन, जो लोग करते हैं आपको पता होगा, क्योंकि मेडिटेशन से हम एक तरह से जो हमारे दिन की हसल बसल रहती है, हम हर वक्त भाग रहे होते हैं एक टास्क से दूसरे टास्क पर, उस सबको प्रोसेस करने के लिए और अपने पास एक मोमेंट लेने के लिए कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ और मुझे कैसा लग रहा है, उसके लिए हम थोड़ा टाइम ले पाते हैं मेडिटेशन में. दूसरा, रैशनलाइज. आपको जो भी इमोशन महसूस हो रहा है सवाल कीजिए, क्यों हो रहा है, क्या इन्फ्लुएंस है, मुझे क्या करने का मन कर रहा है इस इमोशन की वजह से, और अगर मैं जो करना चाह रही हूँ उससे आगे प्रॉब्लम होगी तो मैं वो नहीं करूंगी. उसके बजाय मैं क्या कर सकती हूँ? जैसे कि गुस्से में मारने का मन करता है या कुछ पटकने का मन करता है, पर नहीं, उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? मे बी आई कैन ड्रॉ. आज मैं कलरिंग वाली एक्टिविटी नहीं करवाना चाहती थी बिकॉज आई वॉजंट श्योर सबके पास होंगे या नहीं, पर अगर आपके पास हैं कलर्स, तो जब आपको गुस्सा आ रहा होता है ना और आपके पास वर्ड्स भी नहीं है कि मैं किस तरह से समझाऊं, एक ब्लैंक शीट लीजिए जैसे आज लिए और बस उस पे जो आपका मन कर रहा है ना ड्रॉ कीजिए. अच्छी बुरी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बोला मूवमेंट में भी कि अच्छा बुरा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए, बस एक्सप्रेस करना चाहिए. तो रैशनलाइजेशन, जिसमें आप सवाल करेंगे अपने इमोशंस को ब्रेक डाउन करने के लिए कि मैं समझूं अपने इमोशन को. तीसरा, टॉक अबाउट इट. तीसरा और 5वां पॉइंट समहाउ रिलेटेड है क्योंकि हम अपने सोशल सपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट है. हमारे पास क्या सोशल सपोर्ट है? जो आपने 5 लोग लिखे हैं ना, वो आपका सोशल सपोर्ट है. क्योंकि जब आप इमोशनल क्राइसिस में हैं, यानी कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं आपके इमोशंस, वो 5 लोग आपको मदद करेंगे. उन्हें बोलिए कि वो आपसे सवाल पूछे ताकि आप अपने इमोशंस को बेटर समझ पाए. एंड देन ऑफ कोर्स माइंडफुलनेस, क्योंकि जब हम मोर माइंडफुल रहते हैं हम ध्यान देते हैं आसपास और अपने अंदर. सो माइंडफुलनेस सिर्फ इसी में नहीं है कि हम आसपास देख रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग. माइंडफुल ईटिंग क्या होगी? कुछ भी मत खाइए, अगर आपको किसी चीज की क्रेविंग हो तो उसके फ्लेवर पे ध्यान दो, उसका स्वाद कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है. अच्छा, गले से उतरते हुए उसको एक एक निवाले को ध्यान दो कि गले में उतरते हुए मुझे कैसा महसूस हो रहा है, बिकॉज इट स्लोज यू डाउन. आपको वो मौका देता है कि मैं एक बारी बैठ के सोचूं मुझे कैसा लग रहा है, मैं समझूं मुझे कैसा लग रहा है. सिमिलरली जब आप वॉक करने जा रहे हैं तो थोड़ा माइंडफुली जाइए, मेरे कदम कैसी है, मेरी ब्रीदिंग कैसी है, मेरे आसपास को
किसने क्या पहना है। हम यहाँ जज नहीं करना चाह रहे हैं किसी को, हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि हम थोड़े और अटेंटिव रहें अपने आसपास। किसी ने सवाल लिखा था चैट बॉक्स में जब हम माइंडफुलनेस वाली एक्टिविटी कर रहे थे। somebody asked how is mindfulness related to emotional wellness? क्योंकि इमोशनल वेलनेस इज रिलेटेड टू फर्स्ट आइडेंटिफाइंग कि मुझे क्या लग रहा है, और आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर हम हड़बड़ हड़बड़ में रहेंगे हर वक्त तो हम नहीं पहचान पाएंगे। इट टेक्स अ मोमेंट टू सिट डाउन एंड रियलाइज कि मुझे क्या फील हो रहा है। इसलिए माइंडफुलनेस इमोशनल वेलनेस बढ़ाने में मदद करता है। So I hope you've taken back something from this session, and now this is all that I had to share. अब अगर आप में से कोई सवाल करना चाहता है या फिर से जो शेयर्स हमने बीच में रोक दिए थे वो करना चाहते हैं तो we can resume that. You can stop screen this recording, Sneha.